हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अदर एपिसोड ऑफ आज गंजी स्वैग। और जब तक ये वीडियो रिलीज़ होगी ईद गुजर चुकी होगी। सो आप सबको बहुत सारी ईद मुबारक। जहाँ भी रहें खुश रहें। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। और मैंने कहा था मैंने अपने पेट्रन्स के लिए ईद कार्ड रवाना किए हैं। वो रवाना बिल्कुल हो गए थे अपने टाइम पे। बट बिकॉज ऑफ मैसिव डिलेज ग्लोबली कुछ लोगों को ईद कार्ड शायद ईद के बाद मिले। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सम दीज थिंग्स आर नॉट इन माई कंट्रोल। हाउएवर थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और अगर आप भी करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट ऑन patreon.com/ganjiswag। और उम्मीद करता हूँ आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। ज़रा गले शले नहीं मिले होंगे, दूर दूर रहे होंगे। खैर, चलते हैं पहली ईमेल की तरफ। This one says, hello sir, hope you're doing well. I've been listening to your podcast since past 2 months and find them really interesting and inspiring. I'm emailing you for advice. Sorry for the long email ahead. Basically, I'm from a small town. I completed my O levels from there and moved to Karachi. I finished my A levels from a school here and currently I'm 25. Final year medical student. I've been living in Karachi with my mother in an apartment. Initially, I was living alone with a maid, but then my dad decided that my mom should live with me. I also had the option of living in the hostel, but I rejected the option because I'm a very private person and need my own space to function and work properly. I cannot even think about living in the hostel and dealing with hostel life politics. That's true, to be honest. नहीं रहा जाता लोगों के साथ यार. Here's my complicated life story. From as long as I remember, my mom has been into medical drugs. Uh, okay, ठीक है. She overdoses on them and sleeps or says weird things to us. She has hit me emotionally, um, blackmailed and verbally abused me as a child. Since the past 4 to 5 years, I have lost all respect for her. I don't love her anymore because she was never there for us. There were times when my brother and I slept without food because there was no one to give us food. We took her to the best doctors in the country, got her admitted to rehab, etc. etc. All of us were there for her emotionally and financially, but all our efforts were in vain. Nothing worked out, and it's been 20 years. She is still the same person who does not care about anyone but herself. I can't bring my friends home, can't make her meet anyone. She acts weirdly or starts complaining about us to those people. I act like her mother, tell her how to dress up, how to carry herself, किससे क्या बात करनी है, etc. But I don't think I love her anymore, and sometimes when she disturbs me when I'm studying, which is more often than not, I lose my temper and I scream at her. I can't help it, but I'm juggling a lot of things these past 4 or 5 years. But Alhamdulillah, I have made my peace with it. I know that we have done everything possible to help her, but she doesn't want to help herself. You can only quit drugs if you want to. She will go to any limit to acquire these drugs, trust me. My dad is a great man. He has always been there for me. He has given me emotional support I needed and has been a very liberal father. Because of my mom, he married again in the year 2008 with her permission. I have two little cute brothers who I love a lot. His second family lives in a different house in the small city. I mentioned earlier. In the small city I mentioned earlier, we have two houses in the small city. One in which my mom used to live, and the other one where my little brothers live. I don't blame my dad for marrying again. Everyone needs a life partner, and did it after taking permission from my mom when she was in the right state of mind. The problem is that he has this bad habit of drinking. I used to be a lot. It used to be a lot when I was younger. Sometimes he used to come back home drunk. Don't get me wrong, he has never done anything wrong to me or anyone. I think he drank to ease his pain, but now it has become a habit. I've tried everything to make him leave it. प्यार से समझा लिया, झगड़ा कर लिया, religion, health, talked about every single aspect, but it's not working. He promises me every time, and a few weeks later, he relapses. I'm only concerned about his health now. He's a great man, he loves me more than anyone, and he has always kept me on top priority. It is because of his trust and support that I am where I am today. Alhamdulillah, I can say that I've never done anything wrong, never even touched a cigarette in my life. Rehab isn't an option because he doesn't agree. I have taken him to doctors too, but nothing is working. Please give me some advice. Sometimes I cry at night thinking about this, and my heart aches thinking what will happen if I lose the only parent I ever had. I have made peace with my mom and her habits, but this breaks me every day. My friends think I have the most perfect life, good at studies, liberal parents, no permission issues, financially stable, but they don't know I fight a battle with myself every day. I'm now on a low dose antidepressants because managing studies with this had gotten me really hard for me.
please read this email and offer me some valuable advice, hoping to hear from you. So basically there's this girl, she's a medical student. इनके पेरेंट्स हैं, ये एक दूसरे शहर में रहते हैं, ये कराची पढ़ने रहती हैं, अकेली रहती हैं. फादर इज़ वेरी सपोर्टिव. मदर जो है इनकी वो एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह, स्लीपिंग पिल्स बहुत यूज़ करती हैं, टू द पॉइंट दैट शी इज़ एडिक्टेड. और मतलब इतना कि घर बहुत डिस्टर्ब है. फादर इज़ वेरी सपोर्टिव, ख्याल भी रखते हैं, पढ़ाया लिखाया, हर ज़रूरियात पूरी की, ना इनको परमिशन के इशूज़ हैं, हर चीज़ के हिसाब से थिंग्स आर ओके. इट्स जस्ट दैट ही हैज़ अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम. और फादर ने दूसरी शादी कर ली पहली माँ से पूछ के, जो कि ये समझती हैं, एंड शी लव्स हर हाफ ब्रदर्स. और इसमें ये कि शी अंडरस्टैंड्स कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन. क्लियरली he wasn't happy, or maybe he wasn't satisfied with the way the marriage was, and everybody deserves happiness. मेरा तो यही मानना है. ठीक है. तो इसमें कोई बस ये कि अब उनको टेंशन ये है कि जो फादर की ड्रिंकिंग हैबिट इतनी ज़्यादा हो गई है, तो वो उसकी वजह से कोई खुदा ना खास्ता कोई कोई ऐसा मामला ना हो जाए जहाँ पे शी माइट एंड अप, अल्लाह ना करे, लूजिंग हर पेरेंट. सो बात आपकी सही है. जो आपने वाली बात बोली कि यू डोंट लव योर मदर, दैट्स अनफॉर्चुनेट, ऑल बी इट अंडरस्टैंडेबल. यू कैन ओनली डू सो मच फॉर समवन, मगर अगर एक इंसान खुद ही नहीं सुधर, हमने बस ये समझ लिया कि चूँकि माँ बाप हैं तो बस अनकंडीशनल लव और अनकंडीशनल और सब कुछ. आप हर चीज़ जो है ना वो लीवे इसलिए नहीं दे सकते कि जस्ट बिकॉज वो माँ बाप है. एंड सेम फॉर औलाद, कि यार जस्ट बिकॉज औलाद है तो हमने इनका साइड लेना है, अब चाहे वो कुछ भी करता रहे, ये गलत है. देयर शुड बी अ बाउंड्री, कि उस बाउंड्री के अंदर अगर बाउंड्री क्रॉस होती है किसी भी किस्म की तो वो गलत बात हो जाती है. और मैं बेटा आपसे अंडरस्टैंड करता हूँ आपकी सिचुएशन. ज़ाहिर है आपने बहुत समझाने की कोशिश की अपनी वालदा को, वो नहीं मानती, शी एक्ट्स वियर्डली, जैसा कि आपने कहा आपकी दोस्तों से आपकी शिकायतें करना, ये सब चीज़ें थोड़ी सी ऑफ है. तो इफ़ यू डोंट लव हर, दैट्स परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल. उसमें फिर यही है कि आप दूसरे शहर में रहती हैं, तो अगर आपको ट्रिगर करता है उनके साथ होना, तो कोशिश करें कि कम से कम मेल जोल रखें. बट देन ज़ाहिर है आपका घर है, वहाँ पे आपके फादर भी हैं, आपके भाई भी हैं, तो दैट इज़ नॉट 100% सोल्यूशन. दूसरी चीज़ जो ड्रिंकिंग वाली बात है, आई अंडरस्टैंड कुछ लोग जो होते हैं दे सीक पीस इन रिक्रिएशनल ड्रग्स और अल्कोहल, क्योंकि वो ज़ाहिर है उनकी रियलिटी इतनी बेटर हो रही होती, तो वो कुछ देर के लिए जो है ना उस रियलिटी से ज़रा ऑफ होना चाह रहे होते हैं. एंड द काइंड ऑफ लाइफ ही मस्ट हैव लिव्ड, इट्स नॉट एन ईजी लाइफ. किसी ऐसी खातून के साथ रहना जो कि ड्रग एडिक्ट हो, वो बहुत पेनफुल हो सकता है. एंड देन घर का पीस पूरा बिगड़ जाते हैं. देखें, घर के जो सरबराह होते हैं ना, माँ हो या बाप हो, अगर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ घर एक कंपनी की तरह है. कंपनी के अगर डायरेक्टर लेवल के ही लोग जो है ना वो चीज़ों को सही नहीं चलाएंगे ना, तो फिर पूरी कंपनी डिस्टर्ब होती है. तो और फादर एंड मदर जो होते हैं वो बहुत इंटीग्रल पार्ट होते हैं फैमिली का, और उन दोनों में से कोई एक भी जो है ना थोड़ा सा ऑफ द चार्ट हो ना, तो वो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है. एंड आई अंडरस्टैंड वाई योर फादर चोज द अल्कोहल राउट. अब ये कि उनकी डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है, वो कहते हैं ना कि वो रोज़ाना, अब इवन दो आई एम अज्यूमिंग ही मस्ट बी रियली हैप्पी इन हिज न्यू मैरिज, और आपके जो 2 छोटे भाई हैं उनको बहुत खुशियाँ भी देते होंगे, लेकिन वो चूँकि रोज़ाना वो एक एस्केप में जाने की इतनी आदत हो गई है कि वो नाउ इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम. वो अगर खुद से ना भी चाहें तो बॉडी डिमांड्स इट. अब जैसे कि मैंने खुद सिगरेट छोड़ दी, इट्स बिन 15 दिन राइट नाउ, अभी 28वां रोज़ा है, तो 13वें रोज़े को मैंने आखिरी सिगरेट पी. ऐसे ही लाइक आई वाज लाइक, मुझे ना बड़ा गिल्ट होने लगा था कि यार मैं सुबह उठते ही सबसे पहले चीज़ सिगरेट होती है, और रात को सोने से पहले आखिरी चीज़ सिगरेट. लाइक व्हाई डू आई पॉइजन माई सेल्फ लाइक दैट? व्हाई डू आई वेक अप टू अ ब्यूटिफुल डे एंड डिसाइड कि ओ आई एम गोना इनहेल सम पॉइजन? व्हाई डू आई डू दैट टू माई बॉडी, राइट? तो मैंने आई जस्ट फकिंग क्विट. वो होता है ना टेपर ऑफ, मैं टेपरिंग ऑफ पे बिलीव. बहुत से लोग जो बहुत से ट्रेनर्स कहते हैं टेपरिंग ऑफ इज़ बुलशिट.
इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट, यू डोंट वांट टू डू इट। तो मैंने नहीं किया। शुरू के 3-4 दिन मुझे हुआ, बट नाउ आई डोंट फील एनीथिंग। आई फील सो सुपर रिफ्रेश एंड आई एम लाइक फोकसिंग ऑन माई हेल्थ, स्टार्ट गोइंग टू जिम खैर वो फिर लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया, सो आई एम रनिंग वगैरह वगैरह। सो वो एक होता है, बॉडी जो है ना तंग बहुत करती है। बट देन अगेन मैं कोई बहुत हैवी स्मोकर नहीं था, मगर ये कि था तो सही। अब आई एम श्योर कि लाइक अगर वो इतने अरसे से अल्कोहल डिपेंडेंट हैं तो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई होगी, और वो रिहैब वाली बात जो है ना पेरेंट्स को समझ नहीं आती। सो फिर इसमें ना एक यही आपने रिलीजन कार्ड भी यूज़ कर लिया, सब कुछ यूज़ कर लिया। आई डोंट नो कि फैमिली के कोई बड़े समझा सकेंगे, क्योंकि वो एक पॉइंट के बाद ना फिर वो नहीं चलती बात कि चाचा समझाने आ रहे हैं या मामू समझाने आ रहे हैं, लाइक हाँ भाई ठीक है अपना काम कर। अंकल्स जो है ना इस तरह के हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं ना वो उम्र के साथ साथ ज़िद्दी होते जाते हैं। तो इसमें फिर यही है कि यू नीड टू सिट डाउन विद हिम एंड टॉक। मतलब आपने नॉट यू मेंशन, आपने क्लियरली काफ़ी किया है, बट आई डोंट नो जिस तरह पेरेंट्स हमें ब्लैकमेल करते हैं, फिर कभी कभी हमें भी पेरेंट्स को ब्लैकमेल करना पड़ता है। ट्राई डूइंग दैट। आई होप उनको लगे, बट जस्ट टेल हिम कि यू आर द ओनली पर्सन आई हैव एंड दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग टू योर सेल्फ। मीन लाइक डोंट टेक। मैं जब भी सिगरेट पीता था ना घर में यूके में, तो मैं माई सन वुड बी क्रॉलिंग अराउंड, और मैं यही सोचता था यार मैं इससे ना 7 मिनट छीन रहा हूँ। Every cigarette that I'm smoking, I'm taking away 7 minutes from his life. Why am I doing it to him? You know, I love him. तो यही चीज़ आप बोले कि यार I love you and you're the only person that I have. Why are you doing this to me? So like every time you take a sip, you're basically injecting poison in my veins. आप ये कर रहे हैं मेरे साथ. Do you want to do that? So why don't directly क्यों नहीं कर देते आप, अगर ऐसे ही करना है तो. So you're hurting me. And I know it feels really terrible. So try communicating with him again. वो रिलीजन कार्ड शायद उन पर ना चले, उनको आप सीधा सीधा बोल दें भाई कि लाइक you're doing this to me. I understand why you've taken that route, but this is not the good route, you know. At the end of the day आप जितनी भी पी लें रात को, सुबह उठ के फिर भी यही रियलिटी थी, तो आप escape क्यों ले रहे हैं रियलिटी से? फेस द रियलिटी एंड देन लाइक देयर इज़ ऑल्सो अनदर रियलिटी के चले मुझे मैं तो 25 साल की हो गई, बाकी छोटे भाइयों का क्या कसूर है? आप उनसे क्यों छीन रहे हैं? डोंट यू लव देम? यू नो, बच्चे ही होते हैं जो कि ना पेरेंट्स जो ब्लैकमेल हो जाते हैं ना अपनी ख्वाहिशात की खातिर, बच्चों की खातिर अपनी ख्वाहिशात मार देते हैं पेरेंट्स, अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो कोशिश कीजिए, उनसे बात कीजिए। दैट्स द ओनली तरीका। रीहैब वाला तो समझ नहीं आ रहा। अगर वो पहली स्टेज में मान जाए तो फिर रिहैब कुड बी द सेकेंड ऑप्शन, कि दीज आर थिंग्स टू हेल्प यू एंड हेल्प अस। ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं, हम सब का प्रॉब्लम है। हम जितने भी 5, 6, 8 जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इस इक्वेशन में, हम सब, ये जो आप पॉइजन अपने अंदर डाल रहे हैं, ये हम सब के अंदर भी आ रहा है। सो ट्राई डूइंग दैट। आई होप इट वर्क्स आउट एंड होप फॉर द बेस्ट एंड रियली सॉरी फॉर यू नो your ordeal and your experiences, मगर ये कि you have my prayers and ख्याल रखिएगा. Thank you. हाँ जी, next question. Parents emotionally toxic marriage and mother's well-being. Okay. Assalamu alaikum Junaid bhai, I hope you're doing well. I belong to a middle class family and have studied computer science degree on a merit scholarship. I'm currently a final year student and recently got a job offer from a very good software house. I need your help regarding the emotional well-being of my mother. My parents have been in a mentally abusive relationship for 25 years. My father is a good person and a great father. He has never made us suffer financially, but there is a lot of emotional hurt due to his treatment with my mother. My mama has been emotionally abused all her married life. When I stood up for her rights, the environment suddenly became too much to handle, mostly because of my father's ego getting hurt most of the time. Everyone went to their places and I was shut down. During my teenage years, I became too infected because of his toxicity that I begged him to take me to the psychologist. And they did. The psychologist asked me questions in front of my parents and they laughed together because how absurd I was. It happened twice. Wow, that's very sad. When I was a child, we used to have no car. We mostly traveled through rickshaw and on Eid occasions only.
On one such occasion, I was insisting on getting ice cream. Since there was no McDonald's nearby, Mama saw Tutti Frutti shop and requested him to get me an ice cream. My mama and I got the ice cream, but the price was too high. And since you make your ice cream, we did not know about this earlier. अच्छा वो होता है ना कि खुद ही बनवा लें अपना ये स्कूप और ये डालें वो डालें, अच्छा वो वाला होगा. I remember that event vividly, Junaid bhai. He insulted my mother over ice cream in front of the rickshaw driver. This incident scarred me for life. I wonder how much her self-worth would have been shattered. Keep in mind, she never asked him for anything herself. On another occasion, my father returned from the office and was lying on the sofa. My mama was also sitting next to him. I kid you not, he placed his feet on my mother's face. I was so outbusted by it that I ran to him and shrugged those feet off my mother's face. Oh God. The point of telling you all this is not to insult my father at all. I still love him as a father, but would never want such type of a relationship. My point is that my mother is emotionally scarred for life. The poor woman has emotional outbursts and gets too sensitive most of the time. For distraction, my sister and I, made her a Facebook account, but that too looks like an account of a very depressive person. I will be getting a good amount of money and will be able to afford a rented house. We live in a joint family, which itself is another disastrous story. I will make sure to give her all that she deserves without any judgment. I want you to tell me what should I do for her emotional well-being. I cannot take her to a psychologist, as I told you about my experience. Taking a desi parent for a mental health checkup is itself an impossible task. How to improve her self-esteem, how to make her realize she's worth more than just being a mother or a wife, how to get her out of the depression. What can I do on my part to get her out of this state while still living with my father? Given that this has reduced significantly since both of them are getting older. How to not hate all the men. My father was in his early 30s when he got married. What should I do for my emotional well-being? Thank you so much for your amazing content. I wish you more men were like you. Good luck with your future endeavors. Thank you so much. So basically ये खातून है, कंप्यूटर साइंस डिग्री इन्होंने की हुई है मेरिट स्कॉलरशिप पे, सॉफ्टवेयर हाउस में काम करती हैं, इमोशनली हर्ट हैं बिकॉज ऑफ द वे हर फादर ट्रीट्स हर मदर. और वालिद साहब जो है बच्चों के साथ बहुत अच्छे हैं, मगर बीवी के साथ बहुत ही जो है बहुत गंदा बिहेवियर है, टू द पॉइंट कि वो एक बार आइसक्रीम थोड़ी सी महंगी ले ली तो रिक्शे वाले के सामने डांट दिया. और ये मैं हमेशा कहता हूँ ना, हमने अपने माँ बाप को जो है ना कभी हाथ पकड़ते हुए नहीं देखा प्यार से, लेकिन लड़ते हुए, मारते हुए, झगड़ते हुए, हाथापाई करते हुए सब ने देखा है. और एंड ट्रस्ट मी, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़िंदगी भर के लिए इमोशनली स्कार्ड कर देती हैं. ऐसा ही है भाई, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है. लेकिन मैं वही कहता हूँ भाई, जब प्यार छुप के करते हैं बंद कमरे में, तो लड़ाइयाँ भी छुप के बंद कमरे में किया करें, और ऐसे किया करें कि बाहर आवाज़ ना आए. जिस तरह दूसरी मामलात की आवाज़ें आप छुपा रहे होते हैं ना, लड़ते सामने बच्चों को स्कार कर देते हैं ज़िंदगी भर के लिए. बड़ी गलत बात है. सो आइसक्रीम ले के पे डांट दिया, और फिर एक बार वो घर से दफ्तर से आए और सोफे पे लेटे हुए थे और अपनी बेगम के यानी इनकी वालदा के मुंह पे पैर रख दिया. अब आई डोंट नो वो मजाक, खैर ये तो खैर बहुत बुरा मजाक है, अगर मजाक भी है तो, राइट. दैट्स वेरी सैड. अब यही होता है ना, देखें यहाँ पे ना समझौते की शादियों में फिर यही होता है, बिकॉज देन यू डोंट वांट द पर्सन. अब औलाद से तो ज़ाहिर है प्यार होता ही है सबको, मगर जिसके थ्रू औलाद हुई है उसी से ही प्यार नहीं होता. ये यहाँ की है, क्योंकि वो आपकी चॉइस ही नहीं थी. ऑन मोस्ट ओकेजन्स 99% तो अरेंज मैरिजेस हैं. ठीक है, पता ही नहीं था किससे शादी हो रही, अम्मी ने बोला ये अच्छा ठीक है जी कर लेते हैं, कर ली शादी. तो वो डेवलप ही नहीं होती फीलिंग्स. और फिर एक बार अगर आप यू स्टार्ट ऑन द रॉन्ग फुट, फिर वो चीज़ें सही नहीं होती, फिर आप बस ड्रैग कर रहे होते हो चीज़ों को फजूल में. और फिर बच्चों की खातिर साथ जीते, ना खुद खुश ना बीवी खुश. और फिर जब खुद खुश नहीं है तो फिर घर का माहौल ख़राब तो बच्चों का जहन ख़राब. और ये ज़िंदगी, ये फिर लूप है. मैं हमेशा ये कहता हूँ, ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला होता है शादी. ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी मेक और ब्रेक कर सकता है, राइट. यू कैन बी जेफ बेजोस, यू कैन बी बिल गेट्स. ठीक है, नहीं चलनी तो नहीं चलनी शादी, ठीक है. तो क्या बोले यार,
अब ये इतना बड़ा डिसीजन होता है, और ये 99% डिसीजन हमारे लोगों के हाथ में ही नहीं है, बस वो अम्मी अब्बू सेलेक्ट करके दे देते हैं। लड़के ज़्यादातर तो क्या बोलूँ यार, मैं लूज़र ही होते हैं। तो वो ये यहाँ पे अगर अरेंज मैरिज बैन हो जाए ना, अबे 90% लोगों की शादियाँ ही ना हो, लूज़र ही थे, उनको तो बात ही नहीं करने आती किसी औरत से, शादी उनकी शादी करा देते, इनको बात नहीं करने आती। एनीवे, सो शी इज़ वेरी कंसर्न अबाउट हर मदर, और ये चाह रही हैं कि भाई उनको सेल्फ वर्थ उनकी बताई जाए, मैं उनके लिए घर अलग ले रही हूँ, ये वो ठीक है। आप ये छोटी मोटी चेंजेस ज़रूर करें उनकी ज़िंदगी में जो उनको पहले नहीं मिली। ज़ाहिर है ये जो ये होता है ना जॉइंट फैमिली, तो बहुत टॉक्सिक होता है, बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है। तो ये तो बिल्कुल ही, इससे शायद अगर आप निकालें तो शायद उनके अंदर एक बेहतरी है, बिकॉज फिर उनमें एक खुद एतमादी होगी कि भाई ये आपका घर है, राइट। वो जो है घर आपके दादा का होगा या वालिद साहब या ताया चाचा वाचा, वो ना मिक्स होगा ना। जब आप उनको नए घर में लेके जाएंगे इंशाल्लाह वेरी सून, तो उनको आपने ना ये रीइंफोर्स कराना कि ये आपका घर है, इसको आप अपने हिसाब से सजाएं। तो उनको उनके लिए दिस माइट बी द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपन टू हर, राइट। मतलब जहाँ एक हस्बैंड आइसक्रीम पे डांट रहा है, वहाँ उसी खातून को जिसको आइसक्रीम नहीं ले पाती बेचारी अपनी चॉइस की, उसको जब घर मिलेगा तो शील बी ओवर द मून इंशाल्लाह। बट खाली चीज़ों से ही नहीं आपने सेल्फ वर्थ चेक करानी कि जी बड़ा मोबाइल दे दिया या फेसबुक बना के दे दिया। अच्छा, वो फेसबुक भी आप कह रही हैं आपने अम्मी को बना के दिया, वो बड़ा डिप्रेसिव सा है। ज़ाहिर है वो जो अंदर से फील करती हैं फिर वही चीज़ें शेयर करती हैं। और फिर फेसबुक जितना भी सोशल मीडिया है, इसका एल्गोरिदम पता है कैसे काम करता है। आप जिन चीज़ों पे ज़्यादा रुकते हो वो फिर आपको वही चीज़ें दिखाता है। आप टिकटॉक पे जो है ना, खैर यहाँ तो सारी गाड़ी से उतर रहे हैं, गाड़ी में चढ़ रहे हैं, सारी बदमाश है, धमकियाँ दे रहे हैं। मगर जिस यूट्यूब पे देख लें आप, अगर आप अनबॉक्सिंग की वीडियो ज़्यादा देखेंगे ना, आपका जो होम स्क्रीन है इट वुड ओनली बी अनबॉक्सिंग वीडियोस। या आप बच्चों का देख रहे हैं ना मिकी माउस क्लब हाउस, तो मिकी माउस क्लब हाउस ही भर जाएगा। सो सिमिलरली फेसबुक भी ऐसे ही है। अब आपकी मामा वो जो आप कह रही है उनका डिप्रेसिंग लगता है फेसबुक, उन्होंने वो शेर व शायरी और डिप्रेसिंग वाले कोट्स होते हैं और वो रोती हुई, मतलब लाइक आई हैव सीन दोज मैन एंड लाइक बहुत बुरा लगता है। तो पहले तो आप ये करें कि उनका इन्वायरमेंट चेंज करें, और जब इन्वायरमेंट चेंज होगा तो यू विल इंशाल्लाह सी अ लॉट ऑफ बेहतरी इन हर लाइफ। दूसरी चीज़ ये कि अपने लिए जो आपने बोला ना मैं अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए क्या करूँ, तो वो तो आप डेफिनेटली थेरेपी ज़रूर लें, बिकॉज आई नो ये चीज़ें बड़ी बुरी स्कार करती हैं, और इनसे ऑल यू नीड इज़ समवन यू कैन टॉक टू विदाउट द फेयर ऑफ जजमेंट। दैट्स व्हाट यू नीड। पेरेंट्स को ना लेके जाएं, वो आपने जैसे बताया कि वो हंस रहे थे वहाँ जाके, दैट्स अ वेरी वेरी सैड थिंग टू डू। जब पता है कि लाइक हम क्यों जा रहे हैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास, कि बच्चे में जो है ना दिमागी तौर पे जो है ना डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, वहाँ जाके फिर हंसना तो उसको और हर्ट करने वाली बात है। लेकिन कोशिश करें अपनी अपनी मामा को आप ना लेके जाएं, उनको ज़रा कन्विंस करें, उनसे बात करें, उनको कॉन्फिडेंस मिलाएं कि ये आपकी बेहतरी के लिए ये ज़ाहिर है उनको जो चीज़ें वो सीख करती थी अपने फादर से, वो उनको आपके फादर से सॉरी, वो उनको नहीं मिली। लाइक यू नो शी प्रॉब्ली नीड समवन टू टॉक टू, लाइक अ शोल्डर टू क्राई ऑन, यू नो यही इंसान की इमोशनल नीड्स होती हैं। So take her to a good therapist that might help her. अगर वो कन्विंस हो जाती हैं वेल एंड गुड, नहीं होती तो कम से कम आप अपनी तो रखें जारी और फिर खुद जाएं, उनको ना लेके जाएं। माशाल्लाह यूर व्हाट 25, यस यूर 25, रिक्शा पकड़ के जाएं भाई खुद ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट एटलीस्ट आप सबको नहीं फिक्स कर सकती, कम से कम अपने आप को तो कर सकती ना। सो लाइक दैट वुड बी कुछ तो टास्क अचीव हो जाएगा, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। तो आप बिल्कुल जो है ना अपनी थेरेपी ना रोकें, गो एंड ख्याल रखें अपना, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू फॉर योर ईमेल। नेक्स्ट वन सेज गिल्ट ऑफ हर्टिंग माई भाभी अगेन एंड अगेन। सलाम जुनेद सर, होप यू डूइंग वेल, सॉरी फॉर द लॉन्ग ईमेल। बेटा ये तो 4 लाइन है, ये लॉन्ग नहीं होती, इट्स ओके। आई एम 21 फ्रॉम आज़ाद कश्मीर, आई हैव 2 brothers and I am the only sister. Both brothers are married. One lives with us and one lives abroad. I had severe depression in the past. I needed a person who understands me and maybe I wanted extra love and care.
आई हैड गुड फ्रेंडशिप विद माई भाभी, आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट माई डिप्रेशन विद हर, आई वॉज डिस्कसिंग, और उन्होंने मजाक में कुछ कह दिया तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उनसे बदतमीज़ी कर दी। शाम को आई सेड सॉरी तो उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। फिर मैं एक दिन उनके रूम में गई, मुझे घबराहट हो रही थी, मैंने उनसे बात करना चाह रही थी तो उन्होंने सही से बात नहीं की, तो मैं अपने रूम में आई तो मैंने इतनी ज़ोर से चीख मारी, फिर इनका मूड ऑफ हुआ कि मैंने क्या कहा है तुम्हें। मैंने फिर सॉरी किया और उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया। फिर मैंने इतनी बार उन्हें सॉरी किया, उनके लिए कार्ड्स भी बनाए, लेकिन उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया। फिर मैंने मैसेजेस भी किए उनको, इतनी किस बात की अकड़ है आप में, और फिर सुना दी। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि जो कुछ मैंने किया उसके बाद माफ़ करना इतना आसान नहीं है। मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है, ख़ुद से नफ़रत हो रही है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे दिल से माफ़ कर दें, बेशक बात ना भी करें, क्योंकि मुझे फ़ील होता है कि अल्लाह मुझसे नाराज़ है और जब तक वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। प्लीज़ टेल मी व्हाट टू डू। ओह ओके बेटा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको डिप्रेशन क्यों हो रहा है, ऐसी क्या वजह है, आप पहले तो उसके ऊपर फोकस करें। वाई आर यू फीलिंग लाइक दिस, इट्स नॉट, यूर ओनली 21, तो ऐसा आप क्यों फील कर रही हैं, तो ये तो उसके लिए आप ज़रूर जो है ना किसी को कंसल्ट करें। दूसरा, रही बात माफ़ी की, वो बार बार कुछ कह देना, माफ़ कर देना, कह देना, माफ़ कर देना, क्लियरली आप थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो, दैट्स वाई आपको शायद नहीं समझ आ रहा हो कि हाउ टू रिएक्ट टू सर्टन थिंग्स। तो उसके लिए बेहतर है कि आप अपने भाई से बात करें, अगर वो माफ़ नहीं करनी भाई से बात करें। अपनी, अगर आपने मेंशन नहीं किया अपने पेरेंट्स, तो हुएवर योर भाभी इज़ क्लोजेस्ट टू, उनसे आप रिक्वेस्ट करें, सॉरी करें। आपने बाकी कार्ड भी बना के दिए, सब कुछ करके दिया। आई थिंक यू हैव गॉन एन एक्स्ट्रा माइल, इतने तो उनको ख्याल करना चाहिए। लेकिन उनको आप पूरे एक्सप्लेन करें कि आप ऐसा क्यों फ़ील कर रही हैं और फिर आपने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। और नेचुरली हो जाता है जब बंदा, आई डोंट नो, आपने ये जो चीख वाली बात की, क्या ये पैनिक अटैक था या क्या था, आई एम नॉट श्योर, आपने क्लियरली इसको मेंशन नहीं किया, मगर क्लियरली यू डिस्टर्ब्ड। आप जो है ना पहले तो उसको आइडेंटिफाई कराएं कि आपको ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है, दिस इज़ नॉट राइट, और इसके बारे में थोड़ा सा आप सीरियस लें। बाकी ये कि भाई को, मामा को, या जो भी भाभी से करीब है उनकी फैमिली में, उनसे आप अपोलोजाइज़ करें कि मुझसे गलती हो गई, और फिर ध्यान करें और कोशिश करें कि ऐसी नौबत दोबारा ना आए कि कोई ऐसी बात हो जाए। क्योंकि फिर वो जब बार बार चीज़ हो और फिर बार बार माफ़ी हो ना, फिर वो माफ़ी नहीं होती। वो कहते हैं ना, यू डोंट नीड टू से सॉरी, यू नीड टू एक्ट सॉरी, राइट। यानी कि आपने किसी को गाली दे दी, फिर आपने सॉरी कह दिया, अगले दिन फिर गाली दे दी, फिर सॉरी कह दिया, तो दैट मीन यू नॉट सॉरी। आप बार बार अगर कर रहे हैं ना, तो सो वही कहते हैं ना, यू नीड टू एक्ट सॉरी। बट क्लियरली आप किसी वजह से डिस्टर्ब हैं और इसके लिए आप ज़रूर किसी को कंसल्ट कीजिए। ख्याल रखें अपना, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट वन सेज मोनोगमी, हाउ डू यू कोप विद इट। हाउ डू यू एज इन जनरली यू, या मुझसे पूछ रहे हो? Hello Junaid bhai, I hope this email finds you in good health. I don't think this has been answered before, despite being one of the main root causes of separation in our society, especially among millennials. I am in my late 20s, from Karachi, have an acceptable job, and it is that time of the life where you start thinking about getting settled. Even though I don't think that I'm made for marriage, because I know my nature, but the longer I delay it, the worse it's going to be. Plus, I can't defy the sunnah and the societal norms. Question: how do you and all the married men out there also women cope up with the notion of staying with a single person throughout your life, accept their imperfections, shortcomings, fading beauty, etc.? I'm not particularly talking about the West, since they don't think twice before ending their marriage if something's off in it. However, separation is considered a taboo in our society, and this thought really scares me. Life is long and you can't possibly spend it with just one person. I don't want to sound like a selfish person, but I hope you know where I'm coming from. How do people end up staying with one person despite they stop being attracted to them? And wherever I go, I see so much beautiful women that I ponder, what if I get married and after 10-15 years I start cheating with a younger and far more prettier woman? Long distance relationship is better in retrospect. You get to meet your other half after months for just a few days, and it keeps the excitement ignited. Keeping attractions aside, I know most of my elders in my family have just kept their marriages for the sake of our betterment and their children.
Perhaps the people of that time had a lot of patience and valor, and I really admire them for it. My khala, puppo, mamus, my grandmother, or 70% of the elder couples in my family aren't exactly fond of each other, but they're just surviving together for the sake of their children and society. Our generation doesn't have that kind of courage, including me. Before turning into your opinion, I asked some of the people in my circle in the mid 30s who have all favored the marriage. Recently, three close friends in my circle got separated. I will share about that in future because things didn't work out. And our society shows pity to them till now. This thought is just eating me. Why would I leave my perfectly fine single life and get into something which I'm sure I'm going to regret later on? Giving up my freedom, finances, and peace of mind, not looking for religious answers, mate. And you need a partner to share things with. अच्छा ये वाली चीज़ ये वाले आंसर नहीं चाहिए इनको. So basically साहब है लेट 20s में अच्छी जॉब है अच्छा कमा रहे हैं. मोनोगमी यानी एक इंसान के साथ रहना, सिंगल पार्टनर. वो कह रहे हैं मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा. वो अपने आप से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं. वो जो है आज पूजा कल कोई दूजा टाइप. तो कह रहे हैं कि भाई मैं शादी करके लोग किस तरह साथ रह लेते हैं डिस्पाइट कि एक वक्त के बाद आपको ज़ाहिर है इम्परफेक्शंस नज़र आना शुरू होती हैं. फिर आपकी अट्रैक्शन जो है वो मतलब जो खूबसूरती होती है वो फेड होती रहती है उम्र के साथ. अट्रैक्शन कम होती रहती है. वेस्ट में कह रहे हैं कि जी वहाँ तो कोई भी थोड़ा बहुत ऑफ हो तो डिवोर्स ले लेते हैं. वो अपनी हैप्पीनेस को ज़ाहिर है वो रखते हैं. अब देखो ना मेलिंडा गेट्स को नहीं समझ आया बिल गेट्स. तू होगा विंडोज़ मगर मेरी खिड़कियाँ तेरे लिए बंद हो गई. क्या बात बोली मैंने. तो वो निकल गई. ठीक है ना. अब यहाँ पे जो है ज़ाहिर सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, टाबू है, और फिर बच्चों की वजह से साथ रहते हैं वगैरह वगैरह वगैरह. तो वो कह रहे हैं कि जी मिलेनियल्स जो हैं वो कैसे कोप अप करें. कह रहे खाला फुप्पो मामू दादा दादी वो साथ रहे मगर हमें साफ दिखता था कि वो बच्चों की वजह से साफ दिख रहे थे रह रहे थे. यार देखो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें. एक तो ये है कि सी दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द पॉइंट अबाउट गेटिंग मैरिड कि ना आप वो जो आपने वाली बात बोली ना कि मुझे अगर 10 साल बाद कोई और नज़र आ जाए, 10 साल बाद कोई और, देयर इज़ ऑलवेज अ बेटर लुकिंग पर्सन आउट देयर. ऑलवेज ऑलवेज. तो ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा. राइट. आप किसी के साथ हो, किसी मॉल में गए, यू सॉ समवन, वो उससे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ जाएगी. राइट. आप ट्रैवल करने टर्की गए, टर्की में तो हर तीसरी औरत हुर्रम सुल्तान है. ऐसे ही है भाई. आपको आई थी फीलिंग अंदर हल्की हल्की कि यार जल्दी हो गई हैं. तो ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा. देयर इज़ ऑलवेज समवन आउट देयर. इंस्टाग्राम देखो ना आप तो ख़त्म ही नहीं हो रहा. तो फिर क्या हाल है. क्या जंपिंग ही करती रहनी ज़िंदगी में, इधर उधर 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 उधर. एक चीज़ अब ये जो आपने बात की ना कि वो रैलियाँ करते थे वगैरह वगैरह, उनमें बड़ा पेशेंस था या वैलर था, उनके पास मौके कम थे. अबे दादा के पास टेंडर होता ना ये 100 पे मारते, उनके पास था नहीं. अब मसला ये कल ही मैं मोहम्मद अली और हमारे मोहसिन बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम तीनों यही बात कर रहे थे कि शुक्र है हमारे स्कूल लाइफ में सोशल मीडिया नहीं था, वरना हम तो कभी पास ही नहीं होते हैं. भाई आपके ज़माने में अगर स्कूल में फेसबुक होता पास होते कभी. हम तो लगे रहते इस पर. भाई हम अच्छे टाइम पे निकल गए, हम मोबाइल में फंसे रहते हैं. तो अब ये जो है ना जो यंगर जनरेशन है उसके लिए तो बहुत बड़ा टास्क है यार पास होना, क्योंकि इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं और हर चीज़ घर बैठे. पहले क्या होता था यार, हम लोग वेट करते थे अगर इफ़ यू वांट टू मीट अ गर्ल या इफ़ यू वांट टू चेक समवन आउट, आप वेट करते थे पूरा पूरा साल कि यार फ़लाने स्कूल का फ़न फेयर होगा तो वहाँ जाएंगे, या अली अज़मत या जुनून का कॉन्सर्ट होगा तो वहाँ जाएंगे, विल फाइंड समवन, कोई अगर अच्छी लगी विल ट्राई टू टॉक टू देम, एक्सपो सेंटर जाएंगे, किसी को नंबर देती वो लाइक जो लड़के उस ज़माने की होती. अब तो घर बैठ के मतलब उसमें तैयार हो के यू पुट एन एफर्ट. राइट. सेम गोज फॉर द वेस्ट. यूल गो टू द क्लब्स, यूल गो टू द बार्स टू मीट पीपल, यू लुक योर बेस्ट. अब तो घर में पजामे में बैठ के स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट हो रहा है भाई. और दूसरी चीज़ जो है ना, अब ग्लोबली जो है ना हुकअप कल्चर बहुत आ गया. वो इमोशंस ना हमारी सोसाइटी इतनी सेक्शुअलाइज हो गई है ग्लोबली बिकॉज ऑफ द मीडिया, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ द वे थिंग्स आर, कि वो अब ना इमोशंस नहीं रहे. व्हेन इट कम्स टू कॉपुलेटिंग, इमोशंस असाइड, हुकअप करना है और निकलना है.
लाइक नो फीलिंग्स एट ऑल। एक होता है ना थोड़ी बहुत फीलिंग्स तो इंसान के अंदर होती है ना कि लाइक इफ़ यू गिविंग योर सेल्फ टू समवन, मगर अब इतना वो हो गया कॉमन कि वो कोई बात ही नहीं रही, तो उसकी जो खूबसूरती थी ना वो उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट हो गई, ठीक है ना। तो फिर हॉपिंग ही हो रही है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। ये एक अच्छी बात है कि आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी नेचर क्या है, और आप तो स्लिप हो सकते हैं। सो इसमें ज़ाहिर है बेहतर है यही है कि आप बिला वजह सोसाइटी के प्रेशर में या अम्मी अबू के प्रेशर में आपने शादी कर ली, चले यू अट्रैक्टेड टू द मोस्ट अट्रैक्टिव गर्ल यू कुड फाइंड, बट लाइक आई सेड देयर इज़ ऑलवेज समवन आउट देयर। अब वो अट्रैक्टिवनेस जो है ना आपके लिए होगी कुछ अरसे के लिए, उसके बाद आप सारी imperfections देखोगे। ज़ाहिर है व्हेन यू स्टार्ट लिविंग टुगेदर यू सी द बेस्ट एंड द वर्स्ट, राइट। you'll see her on her bad days, bad hair days, you'll see her on her period, you'll see her mood swings। तो फिर वो ज़ाहिर है आप थोड़ा बोलोगे यार ये क्या, मैंने इस तरह की चीज़ होती है। बट मैरिज जो होती है ना उसमें फिर इट्स फुल ऑफ सैक्रिफाइस। नो गुड थिंग इन लाइफ कम्स विदाउट सैक्रिफाइस, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे पाकिस्तान है, आई पर्सनली बिलीव देयर इज लॉट्स ऑफ मनी टू बी मेड इन पाकिस्तान, विच इज़ वाई आई एम इन पाकिस्तान। I can live in England, I can live in Dubai easily, but I choose to live here, right? बट उसकी प्राइस मैं क्या पे करता हूँ, कभी भी मुल्क बंद हो जाता है, गर्मी इतनी है, सफाई नहीं है, कचरा है, चोरियाँ हैं। लाइक कराची की अगर बात करें, राइट, लाइक चलो कराची में बहुत बिजनेस है, ठीक है, लाहौर इस्लामाबाद में वो बिजनेस नहीं है, विच इज़ वाई लॉट्स ऑफ यूट्यूबर्स जो कि कराची के नहीं भी हैं वो रहते हैं यहाँ पे, काम करने आते हैं। तो उसकी फिर प्राइस क्या पे करनी है कि यार यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है, ये है वो है। सेम गोज़ फॉर इफ़ यू गो टू वेस्ट, यू गो टू कनाडा, यू लिव द बेस्ट लाइफ। प्राइस क्या पे करते हो, यू लीव योर पेरेंट्स बिहाइंड, यू मिस दोराजी का गोला कंडा, यू मिस हनीफ की चाट पापड़ी, राइट। वो चीज़ें वहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं मिलती। देयर इज़ ऑलवेज अ सैक्रिफाइस। इसी तरह जब आप शादी करते हो तो फिर आप ये डिसीजन लेते हो कि दिस इज़ द लास्ट पर्सन। वो कहते हैं ना कि लाइक यू गिव योर वाइफ हर लास्ट फर्स्ट किस, राइट। अब तो पहले ही हो जाती है, मगर एक बात कह रहा हूँ, तो वो आपने फिर करना होता है कि भाई ठीक है, मैं ज़िंदगी में ठहराव चाहता हूँ एंड आई वॉन्ट टू स्टॉप राइट हेयर एंड दिस इज़ द पर्सन आई एम गोइंग टू बी विद फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। बाय हुक और बाय क्रुक अब जो भी है अब यही है, ठीक है ना। बट बाय जो भी है अब यही है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि यू शुड अलाउ टॉक्सिसिटी और यू शुड अलाउ कि मोहब्बत नहीं है, खुशियाँ नहीं है, बस ये कि दुनिया के लिए रह रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा। मगर ये कि आप ये कि अपने अपने आप से भाई वाव क्या होता है, यही होता है ना कि भाई अब ये मेरी फैमिली है। और जो दूसरी वाली बात कही ना आपने, इट्स फाइन। देखो कुछ लोगों की नहीं होती नेचर। आई नो अ फ्यू पीपल who realize that they can not be monogamous, तो वो यही कहते हैं यार हम किसी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करें, विच इज़ फेयर, वेरी फेयर। मगर इसका ना डाउन साइड ये होती है कि आज आप यंग हैं, यूर 29, यूर मेकिंग गुड मनी, हर चीज़ ओके है, यू लुक इन योर बेस्ट शेप, बट देन वक्त के साथ साथ हर चीज़ ढलेगी, राइट। यू वोंट बी एज फिट एज अ 50-year-old एज यू आर राइट नाउ। हर चीज़ ढलेगी, फिर आप तब क्या करोगे? What would you do then? Unless you're a billionaire, then you can have people come and go all the time. Hugh Hefner वाला lifestyle होगा, right? Play house होगा आपका एक, बनीज होंगी वहाँ पे। Other than that, बट वो ना उसके बाद भी, अब जैसे डैन बिल्जेरियन को लड़के बड़ा आइडियलाइज करते हैं यार, ही इज़ ऑलवेज रोलिंग विद पिचेस और यॉर्ट पार्टी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। डैन बिल्जेरियन से खुद किसी ने पूछा, हालांकि वो बहुत बड़ा स्कैम है बाय द वे, उसको इतना आइडियलाइज ना किया करे। उससे खुद पूछा था जो रोगन ने, व्हेन वर यू द हैप्पीएस्ट पर्सन? कह रहे हम 4 दोस्त थे, हम बोटिंग कर रहे थे और हम वो फिशिंग कर रहे थे, दैट वाज द हैप्पीएस्ट टाइम आई वाज एवर विद। हम लोग क्या अज्यूम करते हैं यार, वो वीड के मोटे मोटे जॉइंट्स और लड़कियाँ, शराब, दिस एंड दैट मस्ट बी द हैप्पीएस्ट टाइम। मगर वो हमारे लिए, क्योंकि हमने कभी वो किया नहीं, वो रोज़ करता है, तो उसके लिए तो वो वैल्यू ही नहीं रखता ना। सो आपके लिए भी जो है ना, एक चीज़ के एक पॉइंट के बाद फिर ये चीज़ वैल्यू नहीं करेगी, फिर देन यू वुड सीक रिलेशनशिप, देन यू वुड सीक इमोशनल बॉन्डिंग। अभी तो आप फिजिकल बॉन्डिंग की तरफ ज़्यादा हो ना, कि आज पूजा कल कोई दूजा चल रहा है, बट आफ्टर अ टाइम यू विल रियलाइज, बिकॉज देखिए ये दुनिया जो बनी है, कायनात जो बनी है, और ये दुनिया का जो निज़ाम है,
नेचर के अगेंस्ट आप जा नहीं सकते, और नेचर है ही यही कि इंसानों ने आना है दुनिया में, उन्होंने मिलना है और उन्होंने नए लोग लाने हैं और उन्होंने चले जाना है, ठीक है, दैट इज़ द नेचर, राइट। उसके अगेंस्ट आप जाएंगे तो मोमेंटेरली प्लेजर्स आपको मिल जाएंगे, बट उसके फिर बड़े डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं। और फिर जाहिर है एक रिग्रेट होता है, कुछ लोगों को हो जाता है, कुछ लोग कोप अप कर लेते हैं या छुपाने में मास्टर होते हैं, मगर ये कि वो फिर जब देखते हैं ना दूसरे दोस्तों के बच्चे 7-7 साल के हो गए, फिर फील होता है यार मेरा भी होता, यू नो। उसमें भी लोग कहते हैं कि ये बड़ी सेल्फिश डिज़ायर होती है कि अपने आप को खुश रखने के लिए आप किसी और को दुनिया में ले आते हो। खैर वो एक बड़ी लंबी डिबेट है, मैं उसमें नहीं जा रहा, मगर ये कि यार यू डू नीड समवन। अगर आपने यही कहा था कि मुझे ये वाली बात मत करना, मगर मैं बात ही यही है, इवेंचुअली यू विल फील दैट। तो फिर ये है कि आप फिर शादी अभी फ़ौरन ना करें, यूर ओनली 29, आप 40 तक देख लें कर आके, फिर आपको शायद ठहराव आना लगेगा ज़िंदगी में, फिर शायद आप फील करें कि ओके आई नीड टू बी विद समवन। और रही बात मोनोगमी की, अच्छा अब इसमें अगर हम आ जाएँ, देखें अब वो मैं इस्लाम वाली बात पे तो जा ही नहीं रहा कि जी 4 शादियाँ इसीलिए हैं बिकॉज मर्द की नेचर है, वो एक से बोर हो जाता है। इस्लाम अंडरस्टैंड्स दैट प्रॉब्लम विच इज़ वाई इस्लाम ने रादर देन पीपल हुक अप, उन्होंने जो है ना वो दिया है, एक सेफ गार्ड किया है कि जो है ना औरत के राइट्स हों। लाइक इफ़ यू गो टू, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक शादी में हैं, it's a loveless marriage and you hate the sex and everything, you decide to go to a prostitute and you start going to her more often, मगर उस prostitute के कोई rights ही नहीं है, right, and she's not respected in the society either. So what Islam does is, जो कि कहा जाता है इस बारे में कि जी उसको इज्जत भी मिल जाती है, आप गुनाह से भी बच जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नेचर तो यही है। अच्छा अगर हम उसमें जाएं, बायोलॉजी में जाएं, तो वो कहते हैं देयर इज़, आप ये गूगल कीजिएगा कि वी हैव ट्वाइस एज मैनी फीमेल एंसेस्टर्स एज वी हैव मेल एंसेस्टर्स। अब आप सोचेंगे ये कैसे, हमारी एक अम्मी है एक अब्बू है, उनके एक अम्मी अब्बू थे उनके एक अम्मी अब्बू थे, तो ट्वाइस एज मैनी फीमेल एंसेस्टर्स कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि जब इंसान शुरू हुआ और जब वो हंटर एंड गैदरर से, देखें विमेन आर ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय एन अल्फा मेल हु कैन प्रोवाइड फॉर हर, जो कि हंट कर सकता है, जो कि उसको सिक्योर कर सकता है, हु इज स्ट्रॉन्ग एंड हु कैन गिव हर द बेस्ट ऑफ स्प्रिंग। ये बायोलॉजी है, ठीक है ना। वो कल ही मैं एक टिकटॉक देख रहा था, उसमें था कि मेन आर अट्रैक्टेड बाय विमेन जिनके बाल बहुत थिक होते हैं naturally, because that determines health and that determines कि जो इससे मुझे फ्यूचर ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो और हेल्दी होगा। हम इतना सोचते नहीं है कॉन्शियसली, बट सबकॉन्शियसली यही, वी आर प्रोग्राम दैट वे। ऐसा ही था कि वो कहते हैं ना कि लाइक वाई डू मेन स्टेयर एट बूब्स, ठीक है। एक तो ये बड़ी अजीब बात है कि लाइक यू नो दुनिया की हर किंगडम में, like animal kingdom में, they're not sexually attracted by the thing that feeds their babies. Humans are the only sick bastards who get sexually attracted by the very thing that feeds their babies. That's so awful. But then anyway, so उसका मैंने एक वीडियो देखी थी, तो उसमें वही कहा था कि like you know when a child is born, उसकी पहली फीड ब्रेस्ट से होती है, so वो naturally he's programmed to find health, to find food, to find security through those supple breasts, which is why they are programmed. I don't know if it was right or wrong. So हाँ, वो जो मैं बात कह रहा था कि we have twice as many female ancestors. So basically जो कि अल्फा मेल्स थे, जो कि हीरो ऑफ द क्लैन थे, द ट्राइब के जो हीरोज थे, so basically आई डोंट नो इफ़ इट्स सेफ टू से, मैं इन चीज़ों में ना थोड़ा, मेरी कोई इतनी ख़ास नॉलेज नहीं, बहुत सुपरफिशियल नॉलेज है। वो कहते हैं ना मोरालिटी केम विद रिलीजन, या आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो उन सोसाइटीज़ में जो है ना, प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज़ में इट वाज वेरी कॉमन फॉर women टू हैव डिफरेंट सेक्शुअल पार्टनर्स एंड फॉर men टू हैव डिफरेंट सेक्शुअल पार्टनर्स। और वो इतना, अब जैसे कि अभी भी अमेजोनियन ट्राइब्स आपको मिलती हैं,
तो women are not covering their breasts because वो कहते हैं कि यार why would anyone be attracted to these things, ये तो बच्चों का ग़िज़ा है, मतलब लाइक क्या बकवास है यू नो तो वो नहीं कवर करते. एनीवे सो वो जो उसमें जो अल्फ़ा मेल्स होते थे, सो दे वुड हैव मोर सेक्शुअल पार्टनर्स, सो दे वुड प्लांट मोर सीड्स ऑन देयर वाइफ. सो एक आदमी और उसकी 5 पार्टनर्स या 6 पार्टनर्स, राइट. फिर उनसे जो औलादें हुई, फिर यही सिलसिला चलता रहा. सो अगर उस जाविये में आप देखें ट्री में, सो यू सी हाफ एज मैनी मैन एंड ट्वाइस एज मैनी वेमेन. अब हमारे डायरेक्ट लिनिएज में तो ज़ाहिर है एक फादर और एक मदर है, मगर अगर आप ऑन अ बिगर पिक्चर देखें, सो यू सी मोर वेमेन गिविंग बर्थ बट लेस मैन प्रोवाइडिंग द सीड. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? सो मोनोगमी जो है ना, वो पॉलीगमी इज़ बायोलॉजिकल इन नेचर. अगेन इसमें भी बहुत सारी डिबेट्स हैं. सो लाइक कुछ लोग जो है ना इन चीज़ों का हवाला देते कि दिस इज़ वाई मोनोगमी सक्स एंड दिस इज़ वाई इस्लाम अंडरस्टैंड्स दिस प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड्स अ सोल्यूशन फॉर इट, जहाँ पे औरत भी सिक्योर होती है और मर्द भी सिक्योर होता है. अच्छा, और मैं ओशो का एक सुन रहा था, मेरे पास एक क्लिप था ओशो का, ऑडियो क्लिप मेरे पुराने फ़ोन में दुबई में. सो उसमें ये था कि जो इट्स अ वेरी हॉलीवुड कल्चर के उसमें यू मैरी द पर्सन यू लव. तो ओशो की एक थ्योरी थी, अब मुझे पूरी याद नहीं आ रही, उसमें ये था कि मर्द हमेशा मोहब्बत किसी और से करता है और शादी किसी और से करता है. कभी सुनी है आपने ये बात? उसमें यह है कि यार इंसान अट्रैक्ट होता है जिसके साथ वो मैच हो उसके इंटरेस्ट वगैरह, बट देन फिर वो साथ नहीं रह सकते, फिर वो ऑपोजिट से अट्रैक्ट होता है. लेकिन जब ऑपोजिट देखता है वो कहता है इसमें तो कुछ वो चीज़ें हैं ही नहीं जो मुझ में है. वो अजीब सी थ्योरी थी बट मेड लॉट ऑफ सेंस. मैं ढूंढूंगा उसको यार, अगर मुझे यूट्यूब पे कहीं मिल जाए तो, अगर आप में से किसी के पास हो तो वो ज़रूर. सो ही सेड कि ये जो है ना शादी किसी उसी से करने से प्यार करते हो, इट्स अ वेरी हॉलीवुड कल्चर एंड इट्स अ क्रिएटेड. अब जैसे वैलेंटाइंस डे, इट्स अ हॉलीवुड प्रोडक्ट. सेम ये जो मदर्स डे अभी गुजरा है, इट्स अ प्रोडक्ट. ये नहीं था भाई आपके बचपन में होता था मदर्स डे फादर्स डे है, मदर फादर तो थे. ये भाई ये कैपिटलिस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ताकि माँ का डे बना दिया तो चलो माँ के गिफ्ट बिक रहे हैं, वही शनेल का बैग वहाँ जा रहा है. फिर मदर्स डे जो है, अच्छा फिर क्या वुमेंस डे कर दिया, फिर बीवी को वुमेन करके शनेल का बैग उधर जा रहा है. अबे ये बेचने के तरीके हैं, ये भी डे वो भी डे. ये डिसाइड कौन करता है कि कौन सा डे कौन सा रखना है? हु आर दीज पीपल? कौन लोग हैं जो बैठते हैं वो कहते हैं यार 8 मार्च को वुमेन डे करना है, 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे करना है? कौन लोग करते हैं? अजीब. एनीवे, सो बात बहुत दूर निकल गई. कमिंग टू द पॉइंट, इट्स गुड बेटा दैट भाई साहब, बेटा कह रहा हूँ, दैट यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड इफ़ यू थिंक दिस इज़ द वे यू कैन कैरी ऑन, ठीक है फाइन. मगर ये कि ये सैक्रिफाइस इंसान को देनी पड़ती है ज़िंदगी में. जब वो शादी करता है वो कहता है भाई अब आप ही हैं, जो भी हैं, मेरा सुख चैन आप में ही है एंड you're the only person I think about in different ways. तो यही होता है, यही वादा होता है और उस वादे को ही निभाना होता है बेसिकली. वरना फिर आप रहें जिस तरह आप रह रहे हैं, मगर उसमें ये कि एक पॉइंट के बाद आपको ना वो चीज़ें भी बोरिंग लगेंगी. फिर आपके लिए एक्साइटमेंट क्या रहेगी? देन इट वुड बी लाइक जस्ट अनदर पर्सन एंड it would be a very weird affair. Khair, so I don't know if I answered your question. I said a lot of things, but I don't know if I answered your question. Again, मैंने वो religious वाली वो नहीं दी, और you need a partner to share things with. नहीं, मैं भी क्या शेयर करना है पार्टनर से वे आप. Anyway, so मगर ये कि ज़िंदगी में ठहराव बहुत ज़रूरी है और वो ऐसे ही आता है, मगर ज़रूरी नहीं, सबके लिए नहीं है. मैं ये भी नहीं कहता कि सबको शादी करनी चाहिए. इट्स नॉट फॉर एवरी वन एंड नॉट एवरी वन विल फाइंड समवन. ये भी झूठ है कि देयर इज़ ऑलवेज समवन फॉर एवरी वन. कैसे भाई? 51% औरतें हैं, 49% मर्द हैं, कैसे? नहीं हो सकता. तो कोई हर्ज नहीं है उसमें. इफ़ यू वांट टू लिव दिस लाइफ, गो ऑन मैन.
बट ये कि हाँ किसी की ज़िंदगी ना ख़राब करें, नोइंग फुल वेल कि यू आर दिस टाइप, और फिर भी किसी को ला के ट्रैप करना, ये गलत हरकत है. सो आई लॉर्ड यू एंड अपलॉड यू फॉर डूइंग दिस. वरना तो लोग ऐसे भी होते हैं, और आपने पिछले एपिसोड में सुना ही है कि वो दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन वेमेन, दे इंटरेस्टेड इन मैन. मगर जो है ना शादी कर ली माँ को चुप कराने के लिए, अब उसकी ज़िंदगी बिगाड़ दी, वो गलत है, वो ना करो. उससे बेहतर है फिर यही है. सो या थैंक यू मैन, थैंक यू, होप यू find peace with yourself. हाँ जी, next one says, Saad Junaid bhai, I'm 24 years old, living in Saudi Arabia for the past 22 years. Belong to a middle class family. I've seen my parents work their ass off for us day and night. My mother is a teacher. I have seen them working hard to give us the best possible education in life and not spending a penny for themselves. Obviously, someday I'm gonna marry, but I don't want kids. I don't want to spend my hard-earned money on anyone but on me and my parents. I haven't seen my parents enjoy their lives because they wanted us to have a better life. Call me selfish, but I don't want that. I want to enjoy my life. और आपको पता है हमारे माशरे में कितना बड़ा टैबू है ये. काइंडली कमेंट ऑन दिस. तो बेटा वो जो आप कह रहे हो ना कि हमारे पेरेंट्स ने बड़ी मेहनत की हमारे लिए, वेल दैट्स अ चॉइस दे मेड, ठीक है ना. और उनके पास ऑप्शन था ज़िंदगी इंजॉय करने का, या फिर आपने ये नहीं लिखा आप लोग कितने बहन भाई हो, कि वो बच्चे करके और फिर उन पे करने का. और ज़ाहिर है पैदा किया है तो पालना तो है, तो इसमें देयर इज़ नथिंग हीरोइक. हाँ ये अच्छी बात है कि दे डू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. हमने पता है क्या कर दिया है, हमने बार बहुत लो कर दिया है मोहब्बत में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, कि ओ मेरे पेरेंट्स हमारा बड़ा ख्याल करते हैं. अच्छा क्या करते जी, हमारे स्कूल की फ़ीस भरते हैं, तो किसने, पान वाले ने भरनी थी. मैं पैदा किया तो पढ़ाना भी है, जाहिल थोड़ी रखना था. तो हमने बार बहुत लो सेट किया हुआ है. एक मुझे आई थी ईमेल, आई एम प्राउड ऑफ माई फियांसे बिकॉज ही डजंट चीट. एंड आई एम लाइक यू डोंट हैव टू बी प्राउड ऑन दिस. मतलब दैट्स द बेसिक टेनेट ऑफ दैट रिलेशनशिप कि उसने नहीं करना. ये लाइक ये बहुत बार लो किया हुआ है. तो बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने पैदा किया तो पालना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई नथिंग हीरोइक अबाउट इट. अब उन्होंने लाइफ इन्जॉय नहीं की, मे बी दे डिडंट वांट टू इन्जॉय लाइफ. अगर वो लाइफ इन्जॉय करना चाहते तो वो फिर चीज़ें उस हिसाब से प्लान करते, बच्चे उस हिसाब से करते, या उस गैप से करते कि थोड़ा हम इन्जॉय कर लें, फिर बच्चे फिर 5 साल का हो जाए, फिर इन्जॉय, फिर लोग प्लान करते हैं. अब उन्होंने नहीं की प्लान, मे बी दे डिडंट वांट टू इन्जॉय. आप अज्यूम कर रहे हो कि वो इन्जॉय करना चाहते थे, क्या आपने उनसे पूछा? कुछ लोग होते हैं यार, नहीं ट्रैवल ही नहीं करते, ज़िंदगी में कुछ देखा ही नहीं होता. तो अब आप ये कह रहे हो कि आप जो एक्सक्यूज़ मी इंडेटेड फील कर रहे हो, और आप ये कह रहे हो कि कल को मैंने शादी करनी है लेकिन मैं सिर्फ अपने ऊपर, मैं बच्चे नहीं पैदा करूँगा और अपने ऊपर माँ बाप के ऊपर खर्च करूँगा. तो ये गलत बात है. तो फिर शादी क्यों कर रहे हो भाई? शादी क्यों कर रहे हो? फिर नहीं करो, कमाओ, माँ बाप को एंजॉय कराओ. शादी क्यों कर रहे हो? शादी करके उसका हक मारोगे माँ बाप के लिए, ये भी गलत बात है. बैलेंस करना सीखे ज़िंदगी में. और ये कि बच्चे नहीं करूँगा, तो ये क्या बात हुई भाई? फिर शादी क्यों कर रहे हो? आई डोंट नो मैन, ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, मैंने ले लिया फिर भी, लेकिन यही समझाने के लिए कि देयर इज़ नथिंग हीरोइक अबाउट इट. अच्छी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझी, ठीक है, समझनी थी. और किसे समझानी थी भाई? मोदी ने पालना था क्या बच्चों को? माँ बाप ही पालेंगे, और कौन पालेगा? पैदा किया तो पालेंगे. तो इसमें सेल्फिश वाली बात नहीं है. आपको भी पूरा राइट है ज़िंदगी इंजॉय करने का, उनको भी है, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ समवन एल्सेस अनहैप्पीनेस एंड मिजरी. कि बीवी को जो है ना, आपने शादी करके बीवी को साइड पे किया और माँ बाप पे खर्च करो. लाइफ को बैलेंस करना सीखें, हर चीज़ में बैलेंस रखना सीखें. माँ बाप को भी रखें, ज़ाहिर उनको भी नहीं नेगेट कर सकते, ज़ाहिर है माँ बाप हैं, बीवी बच्चों को भी. हम लोग क्या करते हैं जी, बीवी आती है, माँ बाप साइड में बीवी के थल्ले लग जाते हैं, क्योंकि बीवी से वो मिल रहा होता है जो माँ बाप से मिल नहीं सकता, और वो कहीं कभी मिला ही नहीं था. तो यूँ फ्लैट होते हैं बॉयज़. ऐसा ही है, वो कहते हैं माँ बिठा के समझाती, बीवी लिटा के समझाती है, बेटा फिर किसकी मानेगा? समझ रहे ना आप? तो ये तो सीन है भाई. ज़िंदगी को एंजॉय करना सीखें और वो बैलेंस करना सीखें लाइफ को. नेक्स्ट वन, अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, होप यू डूइंग वेल. आई एम करंटली ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. आई एम 20. I want you to tell me what to do. Basically, I need an advice. 2 years ago, I talked to a girl which I liked and loved most of my life. भाई 20 का है अभी तू. लव इनको फौरन होते हैं, जेब में
झेला ना हो, लव फौरन होता है। और मैं भाई लड़कियों को बता दूं एक बात, बॉय अगर सेटल्ड नहीं है ना तो ज़िंदगी मिजरेबल होगी पूरी, ठीक है ना। ये 20, 22, 23, 24 का लड़का नहीं होता सेटल, नहीं होता। अगर वो 6 फिगर्स में नहीं कमा रहा, देखें भाई प्यार से पेट नहीं भरता। होगा बहुत हैंडसम होगा, चीक यूं अंदर होंगे, ये बाहर आ रहा होगा, एडम्स एप्पल दिखता होगा, ये सब फारिग हो जाएगा। हलवे खाएगा ना ससुराल जाके, सब फूल जाएगा वो, सही है ना, ये सब ख़त्म हो जाएगा। फिर होगा कि भाई जेब में क्या है, घर कैसे चलाना है। यार अपनी आप मम्मियों के साथ ना ज़रा आप जाया करें इम्तियाज़ स्टोर, और ज़रा आटे चीनी दाल का भाव देखें, और ज़रा अपने अब्बा की मेहनत देखें कि अब्बा कितना कमाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तब जाके हमारा घर चलता है। भाई प्यार में पड़ जाते हैं साले, उनके पास कोल्ड ड्रिंक के पैसे नहीं, ऐसा ही है। अबे मांग मांग के सिगरेट पीते हैं, उनके साथ इश्क मशूके लड़ा रहे हो। ये हमारी ज़िंदगी है, हमें पालेगा। पे चूतिया गोल्ड लीफ तो ले नहीं सकता वो अपनी, तुम्हें क्या देगा वो। अकल लगाओ यार, खुदा के वास्ते बड़ी हो जाओ यार। इतनी ईमेल्स आती हैं इस तरह की। अच्छा भाई क्या हो गई, ये मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हो गई। भाई तूने देखा ही क्या है, अभी तो 20 का है तू। मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल देख ली तूने, ऑलरेडी देख ली। अबे यार कसम से यार, भाई ये 20s में प्यार व्यार का सीन ही ऑफ है। ऐसा ही है भाई। भाई 20s ख़ास तौर पे लड़कों के लिए। ओ भाई फ्यूचर है ना, फ्यूचर जो रैपर है, उनका जो गाना है मास्क ऑफ, तो वो उसमें एक बहुत अच्छी लाइन है, चेज अ चेक नेवर चेज अ BITCH। ठीक है, आई डोंट यूज़ द कॉनोटेशन, मगर उस बात में दम है। अबे पैसा चेज करो, ये खुद ही आ जाएगा। आप गलत राउट जाते हो, आप जाते हो लड़की के पीछे, लड़की जाती है सक्सेस के पीछे। क्योंकि देखो उसकी भी एक वजह है। अब आप जो कहते हो ना गोल्ड डिगर है लड़कियां, अबे ना उनको तुम काम करने देते हो, ना उनको तुम नौकरियां। यहाँ पे इतने बड़े बड़े बैंक हैं, लड़कियां हायर ही नहीं करते। वो कहते हैं हमने करनी नहीं है हायर। मैं इतनी कंपनीज में गया हूँ, प्राइवेट कंपनीज में, और मेरी सबसे, जब भी मैं किसी कंपनी में जाता हूँ मैं नज़र दौड़ाता हूँ कि यहाँ पे मेल टू फीमेल रेशियो क्या है। इतनी कंपनियों में गया हूँ कि जी वो मज़हब के लिबादे में भाई हम लड़कियां रखते ही नहीं है। स्ट्रेट अप बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं रखते। तो आप उनको अपॉर्चुनिटी, और ये कराची की बात कर रहा हूं मैं लैया की बात नहीं कर रहा, विहाड़ी की बात नहीं कर रहा। सही है, ये कराची में ये हो रहा है। मौके आप उनको देते नहीं हो। ठीक है, ट्रैवल आप उनको करने, शौहर कराएगा ट्रैवल, तो जब सारी चीज़ें आपने शौहर पे डाल दी कि उसने करानी है, तो फिर वो क्या करेगी, वो बोलेगी ठीक है फिर शौहरी। तो फिर वो तो वही ढूंढेगी जो करवा सकता है ये चीज़ें। तुम खाली गोल्ड लीफ के डब्बे में 2 सिगरेट रख के जो है ना पीछे पीछे जा रहे हो। ओ भाई तुमने कहीं और जाना है, तुमने यूं घूम के आना है। वो यूं जा रही हैं, आप यूं जा रहे हो, और ये आप जितना यूं जाओगे वो उतना यूं जाती रहेंगी। तो आपने यूं घूम के यूं शॉर्टकट लेना है। दिस इज़ लाइक सक्सेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हर चीज़, सिक्योरिटी। फिर वो जाहिर है विमेन गेट अट्रैक्टेड टू सिक्योरिटी, नॉट जस्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एवरी टाइप ऑफ सिक्योरिटी। अब उसमें भी मैं कोई जेंडर रोल डिफाइन नहीं कर रहा। जो लोग, ये भाई 45वीं एपिसोड है, लोग क्या इतना सा चंक सुन के जो है ना वो अज्यूम कर लेते हैं। आप मेरी पिछली 44 एपिसोड देखें, मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करता हूँ। एनीवे भाई ब्यूटीफुल गर्ल हो गई सबसे। आई टॉक टू ओनली हर इन माई होल लाइफ। आई टोल्ड हर आई लव यू एंड शी रिप्लाइड मैं आपसे बड़ी हूँ। हमें 1 साल क्या बड़ी होती है भाई, कुछ भी नहीं होता। दैट मीन्स शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू। उसको पता है ये क्या करेगा, समझ रहे हैं। आइंदा ऐसा ना कहना पढ़ाई पे फोकस करो, मेरे पे नहीं। देखो तुमसे ज़्यादा वो समझदार निकली, पढ़ाई पे फोकस करो। क्यों? क्योंकि उसको पता है भाई तू पढ़ लिख के कुछ कर तो ले। From then till now, no communication happened between us because she blocked me the other day and I wanted to talk to her and I did everything to reach out to her, but she blocked me from everywhere. Well, there's the answer. देखे वो कहते हैं ना sometimes not answering is an answer itself. अब वो नहीं जवाब दे रही, इसका मतलब ये जवाब है। She is not interested in you. I know you will say कोई बात नहीं, आने वाले को रोको नहीं, जाने वाले को टोको नहीं, but the truth is it hurts when someone you love don't love you back. Well, this is fucking reality, bro. ये ज़िंदगी है, ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई। आपको अब क्या है यार, अब उनकी भी बेगम देखती हैं वीडियोस, हमारी भी देखती हैं, क्या बातें करें अब हम यहाँ। नहीं मिलता भाई, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता है, किसी को ज़मीन किसी को आसमान नहीं मिलता, यही शेर है। पहला वाला मिसरा मुझे याद है, दूसरा तो नहीं मिलता भाई। आई नो यू विल से दैट शी हैव टोल्ड मी दैट पढ़ाई पे फोकस करो। ओ तो भाई क्या तो है, किया तो है फोकस पढ़ाई पे, और कितना फोकस करूं। यूईटी से इंजीनियरिंग कर रहा हूं, वो भी मैकेनिकल। अच्छा, और क्या करूं मैं, मर जाऊं।
और रही बात उसकी ये कहने की मैं आपसे बड़ी हूँ, तो आई थिंक शी इज़ जस्ट स्टूपिड लाइन विच डजंट मेक एनी सेंस. इन लव वी डोंट सी एज, बट दिस गर्ल whom I love see age. I don't know what to do. Please help, help, help. By the way, I can't tell anyone about her in my family. Neither she can't, because if in case our families come to know, they will kill us both. तो फिर छोड़ दे, फिर फट भी रही है, मर जाएंगे, करना भी पूरा है, वो मान भी नहीं रही, पीछे भी पड़ा हुआ है. अबे यार इन लोगों का फोकस देखो यार. कह रहा है मैं कर तो रहा हूँ इंजीनियरिंग. भाई तो किस पे एहसान कर रहा है इंजीनियरिंग? तेरे बैच में और भी होंगे. अबे हज़ारों में इंजीनियर निकल रहे हैं, नौकरियां हैं यहाँ पे. क्या कारोबार है भाई? अबे यार इनका आप गोल देखें ज़िंदगी का. भाई आप जाएं, अब मैं क्या बोलूँ आप बेटा VPN डाउनलोड करें. अभी ईद आ रही, अब तो खैर ईद पे एपिसोड चल रही होगी, तो आप सीधा जाएं hubchowki.com पे और मंडने कबाब. आपका मसला ही आपको सर पे चढ़ी हुई है. अबे लव वव कुछ नहीं होता भाई. लव के काबिल तो बनो पहले. भाई देखो वॉर यार, क्या आप वर्ल्ड कप, क्या ऐसी आपको वर्ल्ड कप पे भेजेंगे भी T20 के? क्या आप कोई प्रैक्टिस है, कोई नेट प्रैक्टिस की, कोई आप में कोई किट है आपके पास, तैयारी है, जिम है, फिटनेस है, कुछ है? अबे भाई पूरा रेडी होगा तो वर्ल्ड कप खेलेंगे ना. तू पहले ही कूद रहा है तू चंडीगढ़ स्टेडियम में कि मेरे को बैटिंग दो. अबे तू प्रैक्टिस तो करके आ. वो प्रैक्टिस जो है वो है आपका करियर पे फोकस करो बेटा. जेब में 4 पैसे लाओ, कमाना सीखो. एक तो मैं बोल बोल के थक गया हूँ कि अगर आप 20 के हो और स्मार्टफोन है और 50,000 नहीं कमाते हो तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को. मैं और भी हार्श वर्ड यूज़ कर सकता हूँ लेकिन मैं अवॉइड कर रहा हूँ. शर्म आनी चाहिए. अबे औरतें कमा रही हैं माशाल्लाह यार, अच्छा मतलब भाई हसलिंग कर रही हैं. वो आती है ना, वो लालू खेत वाली जो है एक आंटी, लाइव बेच रही होती सामान, रेड कलर का ब्रा है, यूं खिंच रहा है, ये वो जो भी है भाई पहनने की चीज़ है तभी तो बिक रही है. इसमें शर्मा शर्मी वाली क्या बात है? हासिल कर रहे हैं लोग भाई. वो कह रहा है मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और क्या करूँ, मर जाऊँ. अब मैं यार कुछ बोलना नहीं चाह रहा, कहीं को तुम नहर में ही ना कूद जाए लाहौर की, जाके पता चला हाथ वाथ काट लिया. अबे एक तो सब राधे मोहन है. अबे आधे नहीं हो तुम, राधे पूरे हो. अबे जिंदगी में भी देखा क्या है. 20 में कह रहा है मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल. उसने भी सही बोला बेटा पढ़ाई वढ़ाई कर. उसने भी सही जवाब दिया, पढ़ाई पे फोकस कर और मैं बड़ी हूँ तुमसे. भाई वो नहीं चाह रही आपसे. क्या सुनील शेट्टी बनना है क्या? वो लाएगा क्या? वो हाई रूफ में नहीं, वो दरवाज़ा खुलता है लड़की अंदर, हम हैं बेमिसाल. हर फिल्म में यही होता था सुनील शेट्टी की, दरवाज़ा यूँ खुलता था लड़की अंदर, फिर सुनील शेट्टी जाता था छुड़ाने. अजीब यार, पता नहीं क्या इन लोगों का फोकस है यार. मैं तो कसम से रोना आता है यार इस उम्र में. अबे एथेरियम वाला तेरे से 4 साल बड़ा है, $1.2 बिलियन है उसके पास, कॉइन बना रहा था वो. तुम लव ऑफ माई लाइफ, पल्ले कुछ है नहीं भाई. राउट ही गलत है ना आपका रूट ही गलत है भाई. यू डोंट चेज विमेन, यू चेज सक्सेस एंड देन विमेन चेज यू. ये होता है. यू गेट इट ऑल रॉन्ग, यू गॉट इट ऑल रॉन्ग. आपने फिल्मों में देखा कि भाई वो हीरोइन के पीछे गया, वो नहीं मानी, थोड़ा सा और फोर्स किया, फिर वो मान गई. लाइफ ऐसे नहीं चलती भाई. वो हॉलीवुड, वो बॉलीवुड की फिल्म है यार. कोई फोकस नहीं पढ़ाई पे भाई. इंजीनियरिंग कर आराम से, छोड़ भाई. मैं मूड ही अजीब कर दिया यार. कोई ऐसी सुनाऊँ, मैं दिल कर रहा है अभी मैं रोज़े में हूँ, ऐसी सुनाता मैं अभी कसम से. चलो भाई यहीं पे ख़त्म करते हैं. मैं मूड ही अजीब कर दिया भाई तेरी ईमेल ने. भाई मैं इंजीनियरिंग पढ़ भाई, ध्यान दे अपना पढ़ाई में. प्यार व्यार कर रहे हैं बैठ के, 30 से पहले प्यार नहीं होगा. हब चौकी. हाँ ओके चले भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अपना ख्याल रखिएगा. आई होप आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी. यू कैन सपोर्ट ऑन patreon.com/ganjiswag. आप स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट और एप्पल पॉडकास्ट पे भी एपिसोड्स डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड कर लिया करें भाई, इतनी महंगी मंथली फ़ीस देता हूँ मैं, आता कुछ भी नहीं है. और बाकी ये के सवाल भेजते रहिएगा और फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.